Hello students, as we know chapter 3 which is basic HTML elements has started and is still going on. In previous video we have discussed about some tags of HTML such as heading tag, paragraph tag, center tag, comment tag and some stylish tag which are bold tag, italic tag and underline tag. So today in this video I am going to show you how can you use these tags on your HTML document. So let's start. So first of all I'm going to open text editor. So here you can see this is the notepad text editor, so in which I'm going to type up all the codings. So start from HTML, as you know HTML is the container tag, so I have already typed the opening tag and closing tag both. Now head tag, close the title tag. Now close the head tag. Now come to the next body tag. Body tag also a container tag, so you have to close the body tag too, and all the coding and contents you have typed in between the coding body tag. तो आपका जितना भी कंटेंट है बॉडी टैग जो है कंटेंट होगा, जो भी टैग्स होगा, जो भी एट्रीब्यूट्स होगा वो बॉडी टैग के अंदर ही टाइप होगा. So you can see here I have already typed some contents in between opening body tag and closing body tag. दोनों मतलब opening body tag closing body tag के बीच में कुछ content टाइप कर चुके. Now I'm going to save this file. So click on the file tab. Now go to the save option. When the save dialog box open, type the file name, assign the file name with extension name .html. So I'm going to type project. File name is the project and with extension name HTML. Okay. Now after assigning the name, click on save button and your file will be saved. The file saved हो चुका है. Let me show you. You can see here is the project file of name project is already saved. And when you open this page, let me show you. When you open this project, what you see, आपका जो कंटेंट था जो आप टेक्स्ट एडिटर में टाइप किया वो सारा कंटेंट एक ही लाइन में कंटिन्यूसली टाइप हो गया. लेट मी सो यहाँ पे आप जब टेक्स्ट एडिटर में जो भी कंटेंट टाइप किया आप क्या दिखे पर्सनल इसकी जो कि आपका हेडिंग था वो एक अलग लाइन में था, देन बाकी कुछ टेक्स्ट थे जो नेक्स्ट लाइन में लिखे थे और उसके बाद जो कुछ टेक्स्ट थे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखे थे. लेकिन जब आपका ये आप जब इस वेब पेज को ओपन किए इसके वेब पेज को तो आप क्या देख रहे हो सारे आपके जो कंटेंट थे वो एक ही लाइन में आ गए. So whatever tag we have discussed in previous video, all these tags we will going to use in this HTML document, and then we will also see how can this content will looks different. कैसे ये सारा content different दिखता है. So now I'm going to first of all I'm going to use heading tag. आपका सबसे पहले कौन सा tag यूज होगा? heading tag. So as we know, heading tag are used to define the different heading levels इन एन HTML डॉक्यूमेंट. ऐसा हम जानते हैं कि हेडिंग टैग को यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट हेडिंग लेवल को डिफाइन करने के लिए हम हेडिंग टैग को यूज़ करते हैं. हेडिंग आर टिपिकली प्रेजेंट इन लार्ज एंड बोल्ड फॉन्ट्स. आपका जो हेडिंग होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं. अभी आप जैसे आप नॉर्मली आप कंटेंट जब टाइप करते हो तो आप चाहते हो कि आपका हेडिंग जो है नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा डिफरेंट लार्ज दिखे तो डिफरेंट दिखे. तो आपका जो हेडिंग होता है टिपिकली प्रेजेंट होता है लार्ज एंड बोल्ड फॉन्ट विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, जिसकी वजह से वो दूसरे टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट में होते उनसे वो डिफरेंट दिखता है. There are 6 level of heading tag which are specified by H1, H2, H3, H4, H5, H6. इसमें आपका जो हेडिंग लेवल होता है वो 6 टाइप के होते हैं. आप 6 टाइप के हेडिंग यूज कर सकते हो अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज हेडिंग टैग. सो आई एम गोइंग टू यूज वन मोर थिंग. H1 टैग बिकम्स लार्जर हेडिंग, मतलब आपका H1 टैग के हेड से आप सबसे बड़ी हेडिंग यूज कर सकते हैं और H6 जो आपके सबसे आप सबसे छोटी हेडिंग यूज कर सकते हो. So here I am going to type H1, but H1 आप as you know
heading tag is a container tag, so you have to close, you need to close this tag. आपको इस tag को close करने की जरूरत होती है. I'm going to show you. Going to close h1 tag. आपका h1 tag close हो गया है. Now save this file. When you save this file, go to your, you can save your file with the help of shortcut key, or you can save this file from here. आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो या फिर अपने शॉर्टकट की से भी सेव कर सकते हो. Now go to your web page. Let me show you. Here is the web page. Now reload this page. And what did you see? आपका जो हेडिंग था वो आप h1 टैग के हेल्प से आपकी जो कंटेंट आप h1 टैग क्लोजिंग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कंटेंट रखे वो हेडिंग में कन्वर्ट हो गया आपका. ये आपका हेडिंग में कन्वर्ट हो गया. तो h1 जो है आपका सबसे बिगेस्ट हेडिंग और सबसे लार्जर साइज जो होता है फ्रंट का वो डिस्प्ले करेगा और एक्सेस सबसे छोटा. लेट मी शो यू वन बाय वन ऑल दिस थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कॉपी दिस so that I show you. Now come to the next heading, which is h2. h2, type the content and close h2. Okay. Then h3, this is the third heading level. Now close h3. h4, this is the fourth heading level. Close h4. Now come to the h5, which is the fifth heading level, and h6, this is the last heading level. आपका सबसे छोटा साइज का हेडिंग आपको डिस्प्ले करेगा. ओके. Now close the heading. Now after editing all the code, modifying the code, just save this coding. आपको इस कोडिंग को सेव करना है and then go to your web page. अपने वेब पेज पे जाइए एंड रिलोड कीजिए. अपने वेब पेज को रिफ्रेश कीजिए, रिलोड कीजिए. एंड व्हाट डिड यू सी? आप क्या देख रहे हो कि अलग अलग तरह के हेडिंग्स आपको डिफरेंट साइज में डिस्प्ले हो रहे हैं. आपको सबसे h1 में सबसे बड़ी हेडिंग्स थी, h2 में आपको उससे छोटी, फिर h3 उससे छोटी, एंड इस तरह से आपको पट्टी चली गई. मतलब जितने वेट अ मिनट. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज हेडिंग टैग टू डिफाइन योर हेडिंग्स. वन मोर थिंग, heading tag has a single attribute which is align attribute. With the help of align attribute you can set the alignment of your heading. आप हेडिंग के अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं. लाइक लेफ्ट साइड में आप इसको यूज करना चाहते हो, राइट साइड में या फिर सेंटर. लेट मी शो यू. लाइक आपका एट्रीब्यूट है तो वो एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के साथ यूज होता है. अलाइन, आई एम गोइंग टू शो यू. अलाइन इक्वल टू एंड यूज सेंटर. आपकी हेडिंग सेंटर में यूज करना चाहते हो सारी हेडिंग्स को. ओके. तो व्हाट आई डिड, अपने सारे हेडिंग में आपका अलाइनमेंट सेंटर चूज कर चुकी हूँ. नाउ गोइंग टू सेव दिस फाइल एंड गो टू योर वेब पेज. अभी आप वेब पेज पे क्या देख रहे हो कि आपका जो हेडिंग है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है. आपके डॉक्यूमेंट में लेफ्ट अलाइन है. तो व्हेन यू रिलोड दिस पेज, व्हाट यू जैसे आपका सारा जो हेडिंग था सेंटर अलाइन हो चुका. और आप क्या देखते हो, हेडिंग 1 h1 जो है आपका हेडिंग फर्स्ट लेवल जो है वो सबसे बड़ी लार्जर फॉन्ट साइज को डिस्प्ले कर रहा है, और h6 जो है वो स्मॉलर फॉन्ट साइज को डिस्प्ले कर रहा है. So I hope you can understand about heading tag. How can you use this in your HTML document? Now come to the next tag, which is T tag, or you can say paragraph tag. अभी आप जो देख रहे हो, जो भी कंटेंट आप देख रहे हो, अभी क्या ये सारा आपका एक ही, यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हो कि आप अलग अलग पैरा में टाइप किए हो, आप ये कंटेंट को अलग अलग पैरा में टाइप किए हो. बट जब आपने वेब पेज पे आप देखते हो तो क्या दिखता है, सारा कंटेंट आपका एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है. सब कुछ एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है. सो आप अगर चाहते हो कि आपका टेक्स्ट पैराग्राफ एज अ पैराग्राफ डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आपको टी टैग यूज़ करना होगा, पैराग्राफ टैग यूज़ करना होगा. तो जिस भी कंटेंट को आप पैराग्राफ टैग के अंदर, मतलब पैराग्राफ एज अ पैराग्राफ यूज़ करना चाहते हो, उसको आप टी टैग के अंदर यूज़ करोगे. टी टैग इज ए कंटेनर टैग. इसमें आपका इसका ओपनिंग टैग भी होगा, क्लोजिंग टैग भी होगा. तो टाइप टी टैग, और जिस कंटेंट को आप एज ए पैराग्राफ, लाइक यहाँ से ये टेक्स्ट तक पैराग्राफ यूज़ करना चाहते हैं, तो इस आपका टेक्स्ट के स्टार्टिंग में जिस टेक्स्ट को आप पूरे कंटेंट को आप पैराग्राफ बनाना चाहते हो, उसके स्टार्टिंग में ओपनिंग टी टैग टाइप करेंगे, और उस टेक्स्ट कंटेंट के लास्ट में क्लोजिंग टी टैग टाइप करेंगे. तो ये क्या होगा, ये आपको अलग पैराग्राफ में डिस्प्ले करेगा, ये आपको अलग पैराग्राफ में यूज हो जाएगा. लेट मी शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल सेव दिस फाइल. आफ्टर मॉडिफाई द कोडिंग, सेव दिस कोडिंग, गो टू योर वेब पेज. अभी क्या दिख रहा है आपको, सारा कंटेंट एक साथ दिख रहा है. व्हेन यू रिफ्रेश दिस पेज,
व्हाट डिड यू से, आपका जिस कंटेंट को आप ओपनिंग की टैग पैराग्राफ टैग और क्लोजिंग पैराग्राफ टैग के बीच में लिए, वो कंटेंट आपका अलग एक से पैराग्राफ में डिस्प्ले होने लग गया। तो इस तरह से आप पैराग्राफ टैग को यूज कर सकते हो। पैराग्राफ टैग हैज एट्रीब्यूट विच नेम इज अलाइन। आपका पैराग्राफ टैग का भी एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है अलाइन एट्रीब्यूट। तो विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट यू कैन सेट द अलाइनमेंट ऑफ योर पैराग्राफ सच एज लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर। लेट मी शो यू। अभी आपका क्या है कि सारा सेंटर था। अगर आप अलाइन यूज करते हो, अलाइन इक्वल टू राइट यूज करते हो, RIGH, राइट, एंड सेव दिस कोडिंग, गो टू योर वेब पेज, रिलोड दिस पेज, और आप क्या देखते हो, आपका ये राइट अलाइन हो गया। आप देखिए नोटिस, आपका ये जो कंटेंट था सारा राइट अलाइन हो गया है। आप इस तरह से जस्टिफाई भी कर सकते हो। आप अपने अगर टेक्स्ट को अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना चाहते हो, आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। जो भी अलाइनमेंट आप चाहते हो, यहाँ पे लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई आप यूज कर सकते हो। व्हेन यू गो टू योर वेब पेज आफ्टर सेविंग दिस कोडिंग, व्हेन यू गो टू योर वेब पेज, रिलोड दिस पेज, और आप क्या देखते हो, आपका पूरा कंटेंट जस्टिफाई हो गया, मतलब इवेंटली सेट हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टैग विच इज सेंटर टैग। तो व्हाट इज सेंटर टैग? तो सेंटर टैग इज यूज टू सेट द टेक्स्ट और पिक्चर और ग्राफिक्स इन सेंटर ऑन वेब पेज। आपके वेब पेज में सेंटर अलाइन करना चाहते हो किसी टेक्स्ट को या कंटेंट को, तो सेंटर टैग के हेल्प से आप उसको कंटेंट को सेंटर कर सकते हो। लेट मी शो यू है, आई एम गोइंग टू शो यू। दिस इज द टेक्स्ट आई एम गोइंग टू टाइप ऑनेस्ट। ओके, ये टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं। अभी आप जब इसको सेव करते हैं, इस टेक्स्ट को सेव करते हैं और जाते हैं वेब पेज पे अपने और रिलोड करते हैं, तो व्हाट डिड यू से, आप क्या देखोगे, जस्ट ऑनेस्ट एक टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनेस्ट एक टेक्स्ट आ गया जो कि साथ में डिस्प्ले हो रहा है, कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं है। इफ़ यू वांट टू टेक्स्ट अलाइन दिस टेक्स्ट, अलाइन, आप अलाइनमेंट इसको टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, तो लेट मी शो यू आप कैसे इसका विद द हेल्प ऑफ सेंटर अलाइनमेंट आप कैसे किसी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हो। So whatever text or content or graphic you want to align center, you have to use that text in between opening center tag and closing center tag. Center tag क्योंकि आपका कंटेनर टैग है, तो आप जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी ग्राफिक्स को आप सेंटर अलाइन करना चाहते हो अपने वेब पेज पे, उसको ओपनिंग सेंटर टैग एंड क्लोजिंग सेंटर टैग के बीच में यूज करेंगे। Here you can see opening center tag and then content and then type closing center tag. एंड व्हाट डिड यू सी, आप ये टाइप कर चुके हो। नाउ सेव दिस कोडिंग, आप ये कोडिंग को सेव कर लो। सेव दिस कोडिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो टेक्स्ट है, ऑनेस्ट टेक्स्ट जो है उसको आप सेंटर अलाइन करना चाहते हो। देन सेव दिस कोडिंग, आप सेव करो एंड गो टू योर वेब पेज, रिफ्रेश दिस पेज, एंड व्हाट डिड यू सी, आपका जो टेक्स्ट था जिसे आप सेंटर अलाइन टैग के बीच में यूज किए, वो सेंटर अलाइन हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टैग विच इज कमेंट टैग। Now come to the next step, which is comment tag. Comment tag is mainly used for documentation. With the help of comment tag, you can place little notes to remind yourself what piece of coding is doing what. आपका जो कमेंट टैग होता है, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर बट दे आर स्टिल अवेलेबल इन द प्रोग्राम। होता है क्या, जो कमेंट टैग के अंदर जो भी कंटेंट टाइप करते हो, वो जो कंटेंट होता है वो आपके टेक्स्ट एडिटर पे तो डिस्प्ले होता है, बट वो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता है। इससे क्या होता है कि आप बस अपने आप को ये नोटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो कमेंट टैग कि कौन सा पोर्शन आपके प्रोग्रामिंग का किस लिए यूज कर रहे हो। लेट मी शो यू, लाइक यहाँ पे आप पैराग्राफ टैग स्टार्ट किए थे, तो लेट मी यहाँ पे आप जैसे थोड़ी देर के लिए आप, ये आपका कमेंट टैग है, ये आपका कमेंट टैग, इस तरह से कमेंट टैग डिस्प्ले करते हैं। तो कमेंट टैग जो भी है, आपका कमेंट टैग के अंदर जो भी कंटेंट आप टाइप करते हो, वो कंटेंट आपका टेक्स्ट एडिटर पे तो डिस्प्ले होगा, बट ये आपका ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होगा। लेट मी शो यू, यह दिस इज द ओपनिंग कमेंट टैग। नाउ दिस इज पैराग्राफ सेक्शन। I'm going to type this content in between this and now close this. This is the, you can see this is the opening comment tag. This is the opening comment tag and this is the closing comment tag. So whatever content you type between opening comment tag and closing comment tag just display on your text editor, not in the browser. आपका ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा। Now save this code. Now save this coding. आप क्या देखें, यहाँ पे आपका कमेंट टैग, आप यहाँ पे आप लिखा दिस पैराग्राफ सेक्शन, उसके बाद आपका बाकी का पैराग्राफ है। व्हेन यू गो टू योर वेब पेज,
एंड रिलोड दिस पेज, आप क्या देखते हो यहाँ पे वैसा कोई भी कमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो कमेंट टैग का बस यही काम होता है, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। विच मीन्स आप कमेंट टैग के हेल्प से, अगर आपके बहुत बड़ी लंबी प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो, बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो, तो कुछ सेक्शन जिसको आप खुद को रिमाइंड करने के लिए आप कमेंट टैग की हेल्प से अपने आप को रिमाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो कि कौन सा सेक्शन आपके प्रोग्रामिंग का किस लिए यूज़ हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टैग विच आर स्टाइलिश टैग, विच इज यू टैग, आई टैग एंड underline tag, which is bold tag, underline tag, italic tag. So with the help of bold tag and italic tag, underline tag, you can bold your content, you can underline the content and you can italic the content. Here you can see जब आप अपने वेब पेज पे जाते हो तो अभी जो आपका ये ऑनेस्ट जो आपका ये डिस्प्ले हो रहा है, ये जो टेक्स्ट है डिस्प्ले हो रहा है, ये सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। बट व्हेन यू यूज बी टैग और यू कैन से बोल्ड टैग, जब आप बी टैग यूज करते हो, बी टैग इज ऑल्सो कंटेनर टैग, तो जब आप बी टैग यूज़ करते हो तो आपका क्या होगा, कंटेंट में चेंज होगा। ओपनिंग बी टैग टाइप करेंगे, जिस भी कंटेंट को आपको बोल्ड में डिस्प्ले करना उस कंटेंट को टाइप करेंगे एंड देन क्लोज दिस बी टैग। आप यूज़ कर लिए ओपनिंग बी टैग एंड क्लोजिंग बी टैग। नाउ सेव दिस फाइल, गो टू योर वेब पेज, रिलोड योर पेज एंड व्हाट डिड यू सी, आपका जो टेक्स्ट था जो आप बी टैग बोल्ड टैग के ओपनिंग बोल्ड टैग और क्लोजिंग बोल्ड टैग के बीच में यूज किए, वो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो गया, वो आपका बोल्ड लेटर में डिस्प्ले होने लगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब आप यूज करना, आई एम गोइंग टू यूज यू टैग और यू कैन से अंडरलाइन टैग। सो विद द हेल्प ऑफ यू टैग यू कैन अंडरलाइन द टेक्स्ट। तो आप जिस भी टेक्स्ट को, यू टैग इज ऑल्सो कंटेनर टैग, तो जिस भी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना चाहते हो आप जस्ट आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग अंडरलाइन, ओपनिंग यू टैग एंड क्लोजिंग यू टैग के बीच में उस टेक्स्ट को टाइप करना है। हियर यू कैन सी ओपनिंग यू टैग एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस टैग। आपका यू टैग एंड आपका ओपन हुआ एंड क्लोज भी कर दिए। नाउ सेव दिस कोड एंड गो टू योर वेब पेज, रिलोड दिस पेज एंड व्हाट डिड यू सी, स्मॉल अंडरलाइन आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो चुका है। इफ़ यू वांट टू अंडरलाइन योर हेडिंग, आप जो हेडिंग दी है उसको अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप उसको भी अंडरलाइन कर सकते हो। लेट मी शो यू। जैसे आपका ये H1 सबसे स्टार्टिंग का जो हेडिंग है उसको आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो हेडिंग के जस्ट पहले आप यू टैग यूज करो। जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी जहाँ भी पूरे कंटेंट में, पूरे वेब पेज में आप जिस भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हो जस्ट उस टेक्स्ट के पहले आपको ओपनिंग यू टैग यूज करना है एंड उस टेक्स्ट के अंत में आपको क्लोजिंग यू टैग यूज करना है। सेम एज बोल्ड टैग, बोल्ड के लिए भी आपको ऐसे ही करना है। जिस भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हो उसके जस्ट बिफोर आपको ओपनिंग बी टैग यूज करना है, ओपनिंग क्लोजिंग बी टैग यूज करना है टेक्स्ट के बाद। सेम आपका अंडरलाइन करने के लिए आप क्या किए, जिस भी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना था उसकी स्टार्टिंग में आप ओपनिंग यू टैग यूज किए एंड कंटेंट लिखने के बाद आप क्लोजिंग यू टैग यूज किए। नाउ सेव दिस कोडिंग, go and save your coding. Now go to your web page and reload your web page. आप देख सकते हो कि आपके हेडिंग के नीचे अंडरलाइन हो चुका है। So with the help of U tag you can underline the text. Now come to the next text which is italic text. So with the help of italic text you can make any text italic और कैसे slant view, तिरछा दिखता है आपका, कोई भी टेक्स्ट तिरछा दिखेगा। सो लेट मी शो यू। आपका ये देख सकते हो ये जो आपका सेम जो कंटेंट था हेडिंग ही हमको यूज करते हैं। आपका जो पर्सनल स्किल का जो हेडिंग था इसमें ही हम इटैलिक यूज करते हैं। तो जस्ट आफ्टर यू टैग आई एम गोइंग टू टाइप आई टैग। इटैलिक टैग इज ऑल्सो कंटेनर टैग, आप उसको आई टैग के से डिस्प्ले कर सकते हो। तो कंटेनर टैग है, इसका मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपको कंटेंट टाइप करना है। तो ओपनिंग टैग यहाँ यूज किया एंड लास्ट में आप क्लोजिंग टैग यूज करो कंटेंट जिसको आप इटैलिक बनाना चाहते हो एंड देन क्लोज दिस टैग। आफ्टर क्लोजिंग दिस टैग सेव दिस फाइल, गो टू योर वेब पेज। अभी आप क्या देख रहे हो कि आपका जो नॉर्मल पर्सनल स्किल जो आपका हेडिंग था वो नॉर्मल डिस्प्ले हो रहा है। फिर यू रिफ्रेश दिस पेज, व्हाट डिड यू सी, आपको स्लांट व्यू मिलता है। आपका टेक्स्ट का जो आपका हेडिंग था फर्स्ट हेडिंग वो था तिरछा हो गया, स्लांट व्यू हो गया। सो विद द हेल्प ऑफ इटैलिक टैग यू कैन आई टैग यू कैन गिव यू द स्लांट व्यू ऑफ योर टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को स्लांट व्यू दे सकते हो। So students, that's all for today. I hope you can understand all those topics which I have discussed today. You can understand how can you use all these tags on your all these tags on your document, HTML document. So thank you.